participants are aware about the fact that we have gathered here for some neuromuscular health issues, be it back pain, knee pain, could be ankylosing spondylitis, could be any kind of chronic disorders or little pains and aches due to degeneration and part and parcel of the aging process. So we need to understand, I'm sure all of you all have tried n number of therapies, whether it's homeotherapy, whether it's Ayurveda, or any kind of acupressure, acupuncture, but the relief has been temporary. Yes or no? Does everybody agree with me कि जो भी आपको relief मिला है वो सब temporary relief था. So now what do we need to do to get a permanent relief from the pains? कितने लोग जानने को उत्सुक हैं कि हम क्या कर सकते हैं so that we can find a relief in this pain without taking any external help or medicine. I'm sure nobody enjoys taking a pill early in the morning to run the day properly without any anxieties, aches, and pains. So, to understand Ashtang Chikitsa, आपको एक चीज समझना है. You need to take charge of your health in your own hands. So this therapy works on the internal self by strengthening your internal organs, which in turn cures your aches and pains. So if I have permission from your end, I would like to share the screen. So do I have your permission? Please give me a quick thumbs up. I can still see some cameras of Asta ma'am, Sharmila ma'am, Vaibhav sir, Avik sir, Dipali ma'am. Quickly camera on कर ले, take your virtual seats और इस 1 घंटे के लिए please ensure that no pets, no kids, nobody should disturb you ताकि अब आप आराम से बैठ के समझ पाए कि किस तरह से आप अपने शरीर के ऊपर काम कर सकते हैं. How do I join in? Pearl ma'am, you've already joined in. So I'll just share my screen. Give me 2 minutes. Is the screen visible? Is the screen visible? Give me a quick thumbs up. Okay. Ashtang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. तो हम लोग अष्टांग चिकित्सा में neuro health issues and any kind of musculoskeletal health issues दोनों ही cover करते हैं. Now let's go further. Namaskar, I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is, and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found any permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. Ashtang Chikitsa can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. Now, I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well.
He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way. That's our purpose at Avisa Healing and Fitness. It's a profound way of addressing the aspects of a human body. Who is this webinar for? For people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa, freedom from pain and medicine. So Swamiji will be talking about the Ashtarir or the 8 softwares of the body. तो चलिए देखते हैं क्या क्या हैं ये अष्ट शरीर. सृष्टि शरीर, गर्भ शरीर, दोष शरीर, मर्म शरीर, प्रमाण शरीर, संख्य शरीर, prakriti sharir, vikriti sharir. So when we talk about the prakriti and the vikriti sharir, prakriti is the natural regenerative factor of the body. Vikriti is exactly the opposite of prakriti, that is the degeneration, which is a part and parcel of aging of the body. So Ashtang Chikitsa can heal. Of course, the list goes on and on. So here are a few common problems that we see among the participants. Knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issues, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. Ashtang Chikitsa can heal. Of course, these are the more chronic problems जो आजकल के participants में देखा जा रहा है और काफी common होते जा रहे हैं. So some of these are autoimmune disorders as well. So muscular dystrophy, multiple sclerosis, TMJ disorder, varicose veins, psoriatic arthritis, Ehlers-Danlos syndrome, spinal stenosis, myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylosis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, AVN, Alzheimer's disease, dementia, glaucoma, vertigo, ankylosing spondylitis. So let's hear from Swami Raj Vibhuji. वो क्या बताना चाहते हैं हमें अपने न्यूरोमस्कुलर हेल्थ रिवर्सल्स के लिए. Thank you so much for listening to me patiently. I would request the participants kindly write down your problems along with your name and contact number so that I can take up the questions in the fag end of the webinar. So I will just tell you how we are going to proceed in the webinar. Now you will be listening to the recorded video of Swamiji. After that, we will be inviting somebody live who will be sharing about his or her journey of Ashtang Chikitsa. Of course, we will be sharing the program details. Last but not the least, Swamiji himself will be coming live to share all your problems and आप उन चीजों से निजात कैसे पा सकते हैं वो रास्ता आपको स्वामी जी ही बताएंगे. तो काइंडली एंड क्विकली लिख डालिए आपके प्रॉब्लम्स जो यूनिक है अपने आप में और जो आपको सता रहा है एंड along with your name and number. Thank you so much. Namaste.
over to Anilji to share the details. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक example से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विद अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, and he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों हो जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather
Do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not to look at the problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtanga चिकित्सा. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. से do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस scale में उस समय problem हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtanga Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और Ayurveda Kalachar, in Yoga Kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक example दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation?
जरा सोचिए, प्लीज थिंक अबाउट इट, बिकॉज योर बॉडी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं. आप लेना नहीं चाहते हो. योर बॉडी डजंट वांट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर. इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? व्हाट यू डू? यू डू लॉन्ग एक्सहेलेशन. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही situation मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे. हमने क्या किया? वातावरण का खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बंद तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Degeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. सो ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी. सो व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, so this is the first thing that we need to get to, a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है? तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing,
when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है, there is a little infant which gets born and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती disaligned हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें disaligned हो सकती है. That is terminology. नाभि, kaudi, nale. Now, if your navi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, let's see how do we balance. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, hold your right hand over the top and try to pull it. खींचने की कोशिश करें. Just pull on the left side. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. When you pull, what do? You hold your breath. Yes or no? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go.
Let's go to the third part, pramana. Now, one more thing in Samkhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी. इसी को धातु भी कहते हैं. वी कॉल इट धातु. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, इजंट इट? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. लाइक बोन इज वेरी मच डेंस. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनको काम करने के लिए देयर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड. सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आवर ऑर्गन. हमारी ऑर्गन वीक हो रही है. व्हाट इज डायबिटीज? योर पैनक्रियाज इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. व्हाट इज हाइपोथायराइड? योर थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, है ना? इट हैज आल्सो रिलेशन विथ लिवर. व्हाट इज किडनी डिजीज? योर किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. ऑर्गन डैमेज आजकल ज्यादा है. यू विल सी मोर क्रॉनिक डिजीज आर देयर, है ना? ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज. सो हाउ डू यू करेक्ट योर ऑर्गन? सपोज देयर इज अ जॉइंट पेन ड्यू टू लिवर डिसफंक्शन. लिवर के कारण आपके शरीर में जॉइंट पेन है, इन्फ्लेमेशन. सो यू विल हैव टू करेक्ट द लिवर. आपको लिवर ठीक करना पड़ेगा. इज देयर अ मेडिसिन टू करेक्ट लिवर? नो, देयर इज नो मेडिसिन टू रिजुवेनेट योर ऑर्गन. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुवेनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप. बट सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, तो ये भार आप उठाते हैं. सो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यू कांट लिफ्ट वेट without holding your breath.
You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is what how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे हैं. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally. Your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. Together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई.
There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक हार्ट है जो ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है, लिम्फ का कोई सर्कुलेशन नहीं करवा रहा. इट विल ओनली हैपन बाय मूवमेंट ऑफ द बॉडी. सो इफ यू मूव द बॉडी इन अ पर्टिकुलर वे, दीस टॉक्सिन्स दे गो आउट ऑफ द बॉडी. देयर इज अ कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ सेल्स. इंटरनल एनवायरनमेंट साफ बनेगा आपका, तभी देयर विल बी प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्म, बेटर सेल्यूलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्यूलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरनमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म, अष्टांग चिकित्सा में देयर इज अ पार्ट इन अष्टांग चिकित्सा, देयर इज अ पार्ट कॉल्ड एज अंगन्यासा एंड मर्म विन्यासा, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी: material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of this word called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वात? मूवमेंट. वात ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट? इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए, हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So, वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's little temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now
something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 64-65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing Kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूँ जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak, and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now burst, is now being bursted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But
they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You'll feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called Udana. In Kumbhak Kalachar, in Kumbhak Vigyana, we call it Udana. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root Udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose. In Prana Shakti diagnosis, यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do Prana Shakti diagnosis. And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as
Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई ये मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. I'm sure we've got a little insight on how the body works and how you can come out of your current health problems. So now let me invite Anuba Chatterjee ma'am to share her journey of Ashtanga Chikitsa with our lovely participants to get an even more insight of Ashtanga Chikitsa and how she has benefited by it. Anuba ma'am, am I audible? Can we have Anuba ma'am on spotlight, please? Yes, yes. Yes, ma'am, you can start. Namaskar. Namaskar. Good evening, everybody. I am Anuva Chatterjee. I, through a lot of looking into this Ashtanga Chikitsa, I searched on the YouTube, and what I got, I was very convinced, and I wanted to do this course. I have done the course, and I've done the 9 weeks course, and we're on the customized practices now. I have been suffering from slip disc of the sacral regions for the last 25 years. And I had paralysis on my left leg, wherein I was taken to Madras for treatment for 1 month, after which I came back and they told me that you can walk, but with a lot of restrictions, no forward bending, no taking load on yourself, moving with care. So I continued. I am a working woman, but with a lot of restrictions. I could not
forward bend. I could not sit on the floor. I could not get up from the bed quickly. So various problems. But I've lived my life for the last 30 years. I got this, and on the second week, I discovered my pain was not there. That prolapse of the sacral region affecting my nerves, so that I had tantalizing pain up to my head. I was on medication, SOS, and the doctor said you'll have to be on medication with painkillers. So I was on that also. And I noticed that pain was gone after my second week. I spoke to my mentor, Neena ji, and I told her that I hope this miracle is going to stay with me. And then I continued my journey. I am a patient of GERD. I've got acidity, bloating of stomach, very restricted food. But that also went. I have sleepless nights. That also has gone 80%. And energy, I'm still working. Energy, I am full of it. I want to do well. I want to look after myself. And here I have to say, I am very, very grateful to Swamiji. My pranam to him and his team, excellent team, my mentor, Neena ji, my coordinator, Himanshu sir, and I am wanting you to know 3 things here. Know yourself, your body, respect that body, and love yourself. You will do well. Thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing this wonderful journey of Ashtang Chikitsa. Now I would like to invite Deep Chandra Kurketri, sir, to please share his journey of Ashtang Chikitsa. Deep, sir. हाँ सर, नमस्कार सभी लोगों को, बंधुओं को नमस्कार मेरा। मैं Thank you, अष्टांग sir, for चिकित्सा joining के us. हेलो Yes, sir, we can hear you. हाँ, अष्टांग चिकित्सा के बारे में मैंने फेसबुक में चलते चलाते पढ़ा था। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें शामिल हुआ जाए। मेरे अर्थराइटिस मेरे बॉडी में रही है और फ्रोजन शोल्डर्स मेरे थे, जिससे मैं अपने कम से कम लेफ्ट हैंड को ऊपर नहीं उठा पाता था। मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, बैडमिंटन वगैरह काफ़ी मैंने खेला है। तो 2012 में मैं कहीं कार से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, तो शोल्डर्स में चोट आ गई काफ़ी। अर्थराइटिस की वजह से वो काफ़ी बढ़ गया। इलाज कराया, डॉक्टर साहब से भी काफ़ी इलाज कराया, लेकिन विशेषकर अर्थराइटिस के लिए और थोड़ा शुगर डायबिटिक हल्की सी हो गई थी, इसके लिए मैं अष्टांग चिकित्सा को सोचा देखें, इसको परखें है क्या चीज़ है। किया इसको मैंने, तो अभी समझ लीजिए मुझे 1 महीना हुआ था। देखा मैंने कि धीरे धीरे मेरा ये जो लेफ्ट हैंड है, ये आप भी देख रहे होंगे, ये लेफ्ट हैंड मेरा आराम से मूव करने लग गया, जो कि यहाँ से यहाँ उठना मुश्किल होता था। तो इस चीज़ को मैंने अपने ग्रुप में भी बताया कि ये मेरा हाथ तो अब उठने लग गया है, ये उठने लग गया है काफ़ी। तो इससे काफ़ी फर्क पड़ा है। कुंभक वगैरह करने थे, जैसे गुरुजी और हमारी ये अष्टांग वालों की टीम है। आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और उसका रिजल्ट आपके सामने खुद ही आ जाएगा। मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप के लोगों को 1 महीने के अंदर सभी को कुछ न कुछ हुआ है, हल्के हो गए हैं, एक एनर्जी आ गई है बॉडी में सबके। भूख लगनी लग गई है, भूख भी लगती है, लेकिन अगर आप इसमें बेईमानी करेंगे तो कुछ नया होगा। अगर आपने सीरियसली इसको ले लिया
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका फायदा ही फायदा है। और टीम जो आपकी अष्टांग चिकित्सा वाली, गुरुजी समेत जितने भी मेंटर वगैरह हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बहुत उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। और इतना बढ़िया से आपने बताया कि आपको क्या क्या फायदा हुआ है। Now I would like to request Anil ji to please share the program details with us. Okay. Thank you, Rachna ji. Just give me a few seconds. Let me share my screen. Okay. रचना जी, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ, Okay. All right. So let us know about the Ashtang Chikitsa online program detail. जल्दी से जान लेते हैं क्लासेस कब कब होंगी, क्या समय रहेगा और किस किस दिन होने वाली है आपकी क्लासेस। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। First of all, this is a guided program conducted online by trained कुंभक mentors. ये एक गाइडेड प्रोग्राम है जो ऑनलाइन में कंडक्ट करते हैं हम, और कुंभक मेंटर्स जो स्वामी जी द्वारा ट्रेंड होते हैं, ये क्लासेस आपकी एज इंस्ट्रक्टर्स, एज मेंटर्स आपको सिखाते हैं। ये तो हुई पहली बात। नेक्स्ट, program module. There are 3 modules, as Swamiji also shared in the video also. The first module is Vat, second one is Pith and Kaph module. Duration of each module is 21 days or 3 weeks. पूरा जो प्रोग्राम रहेगा उसमें 3 मॉड्यूल्स होंगे, वात, पित्त और कफ। हर एक मॉड्यूल की जो ड्यूरेशन अवधि है वो 3 हफ्ते की रहेगी। सो 3 into 3 makes it 9 weeks. Total duration of the program is 9 weeks. Duration again, if you see here, I have written 9 plus 1. Why 1 week extra? We'll understand in a short while. There'll be 2 live classes every week, out of which one will be the learning or the main class and one will be the mentoring class. हर हफ्ते 2 live classes रहेंगी, एक मेन क्लास और दूसरी रहेगी प्रैक्टिस क्लास। इस तरीके से पूरा प्रोग्राम चलेगा 9 हफ्ते के लिए। What are the next steps? You pay the program fee and there's a special webinar pricing for people who have stayed back. Then you fill the participant onboarding form, which Neha from our team will be sending you. And then you start attending your classes, starting with module 1. Module 1 और या फिर कहें वात मॉड्यूल के साथ आप शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद पित्त, फिर कफ पे जाते हैं। वात, पित्त एंड कफ, these 3 modules have to be completed. आगे बढ़ते हैं। Total classes again, module 1, 6 classes, out of which 3 are learning and 3 mentoring classes. Same is for module 2 and 3. So overall there'll be 18 learning classes. Total 18 classes होंगी। और आप इसमें अब एक और चीज देख पा रहे होंगे, एक कस्टमाइजेशन क्लास है। You see an extra class which we call a customization class. What is this customization class? You'll understand in a short while. So engagement जो रहेगा पूरा आपके साथ, total engagement with you will be for 10 weeks, 9 plus 1 week. 1 week for the customization class, which we will talk about. Batch 135th is starting on 19th June, which is a Monday at 7 PM. 135वां बैच शुरू होने वाला है हमारा 19 जून को, जो एक सोमवार का दिन है, 7 बजे शाम का समय है। मेंटर क्लासेस, ये सभी डिटेल्स हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे और चैट के अंदर, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द क्लास एक्सपीरियंस लाइक? क्लास में कैसा एक्सपीरियंस रहता है? दीज आर लाइव सेशंस एज यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ, which will be conducted on the Zoom app, like you are attending this webinar on Zoom. So same way you will be attending the classes also. Mentors watch all the participants. So this is the reason you have to keep your cameras on. हमारे जो mentors हैं वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो आपको देखते रहते हैं। कैमरा इसी वजह से आपको ऑन रखना होता है अपना।
क्योंकि एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, सो कैमरा तो जरूरी है। एंड देन देयर बी रिटन इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखित निर्देश आपको मिलते हैं। और फिर सेशन रिकॉर्डिंग या फिर कहें जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो सभी को अवेलेबल कराई जाती है। सेशन रिकॉर्डिंग और द क्लास रिकॉर्डिंग आर मेड अवेलेबल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सो इवन इफ यू मिस एनी क्लास देयर इज नो नीड टू वरी। Then there'll be a lot of extra things that you'll be getting, like mental practices, unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan, uh, because there's no diet plan. And many people ask us if there are any dietary restrictions. There are no dietary restrictions. And what is this diet perspective? Basically, you'll get a video from Swamiji in which he explains how to use food so that it supports your body and not harm it. Then you'll be getting simple detox processes, and a lot of knowledge will be shared with all the participants during the course of the program. Before I come to the fee of this program, which a lot of you may be waiting for, I've written some numbers here. And you'll understand why I've written and why I'm sharing these with you. ये मैंने कुछ यहाँ पर फिगर्स लिखी हैं, कुछ मैंने नंबर्स लिखे हैं। जिस तरीके का आप एक एक्सपेंस कर रहे होंगे अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर, अपनी हेल्थ इश्यूज के ऊपर एक मैनेज करने के लिए, दीज आर एक्सपेंसेस दैट यू मे ऑलरेडी बी डूइंग जस्ट टू मैनेज द प्रॉब्लम्स दैट यू आर इन, and you'll understand why I'm sharing these. Doctor fee could be costing, these are yearly figures. ये सालाना जो आप शायद इतना खर्चा कर रहे होंगे, doctor fee could be 6,000 to 12,000 every year. If you're into physiotherapy, another 12,000 to 30,000 may be going towards that, and medicines could be another 15,000 to 30,000. So if you total all of these, 33,000 to 72,000, you may already be spending just to maintain the disease. I'm saying maintain, not cure. Maintain or manage. Because if you're into allopathy, you have to eat the medicines lifetime, and that's the reality. And we all know the side effects of allopathic medicine, so we will not talk about that here. Why I'm sharing this is because when I announce the fee, you can compare the kind of investment you'll be making in this Ashtanga Chikitsa therapy, and then compare, because we are human beings, so we compare things, be it a therapy or a product or anything or any service. So just that's the reason I'm sharing these numbers with you. And it's also important to know who this program is not for, so that it becomes clear who this program is for. ये जानना भी जरूरी है किन लोगों के लिए ये प्रोग्राम नहीं है, ताकि ये क्लियर हो सके ये एक्चुअली किन लोगों के लिए है. दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ मैजिक पिल एंड वांट रिजल्ट्स टुमारो ओनली. क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आप ऐसी कोई जादू की दवाई ढूंढ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें. और अगर आप तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, अगले ही दिन रिजल्ट चाहते हैं, तो ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है. और जहां तक मैजिक पिल, स्वामी जी भी काफी बात करते हैं मैजिक पिल की, बिकॉज ये आदत बन चुकी है हमारी बचपन से लेकर कि कोई भी छोटी से छोटी बीमारी, कुछ खांसी सर्दी जुकाम कुछ भी ऐसा हुआ तो तुरंत हम एक दवाई ले लेते हैं. ज्यादातर समय वो एलोपैथिक ही होती है. तो ये आदत बन चुकी है, इसलिए जैसे ही कोई बीमारी है तुरंत दवाई तुरंत दवाई. वो आप आसपास देखेंगे कि बच्चों को भी आप ऐसे ही ट्रीट करते हैं. आप शरीर को मौका नहीं देते हैं रिकवर करने का. तो ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये क्लियर करना चाह रहे हैं इस पॉइंट के थ्रू. एंड देन दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन देयर बॉडी. ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो अपने शरीर के ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज इट विल टेक 80 to 90 minutes every day to do the daily क्रियाज. 80 से 90 मिनट आपको डेली क्रियाज करने में समय लगेगा. तो ऐसा अगर टाइम नहीं आप दे पाएंगे तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है. एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर इम्पेशेंट. काफी लोग होते हैं जो हफ्ता 10 दिन करते हैं, कहते हैं मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है. तो प्लीज ये समझिए कि कोई ये जो बीमारी है आपके पास, जो आपकी बॉडी में है, वो रातों रात नहीं आई थी तो रातों रात जाएगी भी नहीं. सालों साल लग जाते हैं किसी प्रॉब्लम को उभर कर दिखाई देने में. तो यहाँ पर सालों साल नहीं, बट कम से कम आप 5-6 महीने 12 महीने तो वेट कर सकते हैं ना, कि अगर आपने निजात पानी है, अगर परमानेंट सोल्यूशन आपने देखना है. And this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. I'll just stop here and talk about it a little bit more, because
When we advertise on Facebook and Instagram, we say that attend the free introductory webinar, which you are attending right now. But when we announce the fee, many people are shocked that now we are asking for money. See, the webinar is free because it's an introduction. So don't misunderstand that the therapy, which is a 9 weeks and to be done under supervision with all our mentors, all the support system is there. So that cannot be free. और जैसा कि स्वामी जी बोलते हैं, अगर आप फ्री में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, फ्री में कुछ चाहते हैं, तो कर्म दोष लगता है आपको. Okay. So this is not a free treatment. The webinar that you are attending is free. The therapy of 9 weeks is not free. So please don't ask me when we announce the fee that why we are telling them or charging a fee, because everything costs money. Now, what all you get in the program? आपको मिलता क्या है? You get Pran Shakti diagnosis for root cause determination. This alone could be worth the whole fee for this program. Why? Because there are not many therapies, not many treatments are there which are able to find the root cause or who know how to find the root cause. I'll just explain in a little bit detail so that you understand. What is this? ये होता क्या है? प्राण शक्ति डायग्नोसिस जिससे जड़ पता लगती है बीमारी की, वो होता क्या है, कैसे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ नॉन मेडिकल डायग्नोसिस. Secondly, this is an online diagnosis. Now, both things may sound strange to you. अजीब सी चीजें लगी होंगी शायद आपको कि एक तो नॉन मेडिकल डायग्नोसिस है और दूसरा ही ऑनलाइन कैसे करते हैं. Let me explain. You'll get a form, link of a form, and you'll be asked to do some experiments on your breath and on your emotions. And you to note those down. आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को बोला जाएगा अपनी ब्रेथ और इमोशन, सांस के ऊपर और इमोशंस के ऊपर, और वो लिखना होगा इस फॉर्म के अंदर. सेकंड थिंग दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू डू इज टू राइट अबाउट योर हेल्थ इश्यूज इन डिटेल. दूसरी जो चीज आपको करनी होगी, अपने जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो हेल्थ इश्यूज हैं, उसके बारे में डिटेल में लिखना होगा. और तीसरी, the last thing that you'll be doing is you'll be uploading a selfie photograph in which the face should be clearly visible without any specs. आंखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए जो सेल्फी आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे. एंड इन केस ऑफ लेडीज, नो मेकअप ऑल्सो. लेडीज के केस में कोई मेकअप भी नहीं होना चाहिए. So when these three things reach Swamiji, he is able to determine the root cause. If you paid attention to the video that we played, Swamiji's video, he talks about the 84 forces. So through this Pran Shakti diagnosis, Swamiji is able to determine the root cause. जो 84 फोर्सेस में से कौन सी फोर्स वीक हो गई है जिसकी वजह से आप दिक्कत में आ गए हैं, ये स्वामी जी इस प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर्म से पता लगा पाते हैं. ओके, नेक्स्ट. Weekly one main class of 60 to 90 minutes. Why 60 to 90? 60 minutes is the actual duration. Then we take up questions which may take another 20 to 30 minutes. 60 से 90 मिनट इसलिए बोलते हैं, 60 मिनट एक्चुअल क्लास होती है, फिर उसके बाद लोगों के क्वेश्चंस, उनके डाउट ली जाती हैं. तो इस तरीके से आप ये मानकर चल सकते हैं कि 90 मिनट की के लगभग की एक क्लास रहेगी. Weekly one practice class, same 60 to 90 minutes. Then online course access for 6 months. Like I told you that there'll be the class recordings will be made available. This is the course dashboard that you'll be getting where we'll upload all the class recordings. जो ये कोर्स डैशबोर्ड होगा उसके अंदर सारी क्लास रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाती है और ये 6 महीने तक एक्सेस रहता है. अब कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं 6 महीने के लिए लाइफ टाइम होना चाहिए. अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो 2 से 3 महीना इनफ है. एक्स्ट्रा 6 मंथ दी जाती है सो दैट जस्ट इन केस आप कुछ किसी वजह से ना कर पाए. और आगे बढ़ते हैं. Videos of all क्रियाs done in the class. How this is different from the last point? The last point was about the class recording, the whole duration of 90 minutes. And this is about the videos of separate kriyas. Some kriya may take 2 minutes to watch, some may take 10 minutes, 20 minutes. So you don't have to watch the whole 90 minutes of the class just to see how a particular kriya is being done. आपने सिर्फ उस क्रिया का वीडियो प्ले करना है जिसके जो आप जानना चाहते हैं वो कैसे की जाती है. पूरी 90 मिनट की क्लास की रिकॉर्डिंग देखने की आवश्यकता नहीं है. आगे बढ़ते हैं.
There will be written instructions in English and Hindi. हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश मिलेंगे जो आप डाउनलोड करके उसको अपने डिवाइस पर फॉलो कर सकते हैं डेली क्रियास करते वक्त, और उसका प्रिंट आउट लेकर भी आप अपनी क्रियाओं को कर सकते हैं. Then private WhatsApp group to ask your doubts and questions. This is very important. This is where you'll get daily support. Like I told you, there'll be 2 live classes every week. The remaining 5 days of the week, you'll be practicing on your own. So during the time when you're practicing alone, and if you have a doubt that time, this is the group, the class group where you'll be asking all your doubts. Our mentors are there. They'll be answering your questions, clarifying your doubts, and guiding you step by step. ये एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप जिस पे आप ऐड किए जाएंगे एनरोलमेंट के बाद, यहाँ पर आपको डेली सपोर्ट मिलेगा. जैसे कि मैंने बताया 2 दिन आप लाइव रहेंगे क्लास में, बाकी 5 दिन जब आप अकेले अपने आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उस समय अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा डाउट, कोई सवाल आता है, तो इस ग्रुप के अंदर आपने वो पूछना है. हमारे मेंटर्स आप इसी ग्रुप में ऐड होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑनलाइन कोर्स है, तो इसलिए मल्टी टियर सपोर्ट है इसमें. जैसा कि मैंने बताया, क्लास रिकॉर्डिंग्स है, रिटन इंस्ट्रक्शंस है, ये प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ, और आगे और देखेंगे कैसे, और मल्टीपल टियर है इसमें. देन इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग एंड फीडबैक. We track each participant's progress through a form that we get filled up on a weekly basis, because it's important to know if you're making progress or not. If not, then we try to find out the reason. एक प्रोग्रेस ट्रैकिंग फॉर्म सभी से एक हर हफ्ते भरवाया जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं. अगर नहीं कर रहे हैं तो किस वजह से, वो पता करने की हम कोशिश करते हैं. Then therapy customization for each participant in the 10th week. This is very important. If you remember the first point, I talked about the Prana Shakti diagnosis for root cause determination. Now, based on that Prana Shakti diagnosis, your therapy will be customized. Each participant will get a customized practice. हर एक पार्टिसिपेंट के लिए एक कस्टमाइजेशन होगा, एक फाइन ट्यूनिंग होगी. आपकी क्रियाएं जो आप सीखेंगे उसकी फाइन ट्यूनिंग करके कस्टमाइज करेंगे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए अलग अलग, और ये प्राण शक्ति डायग्नोसिस के ऊपर ही बेस्ड होगा, राइट. और ये 10th वीक में होगा. दिस कस्टमाइजेशन विल बी डन इन द 10th week. Now, one question arises, why the 10th week? If the diagnosis is being done in the first week, then why customization in the 10th week? Good question, isn't it? Let me try to explain. The body is prepared in these 9 weeks to receive this customization. And what happens in these 9 weeks, there'll be a lot of things that will be happening, but primarily you can put them into 3 categories. First, the Vata, Pitta, and Kapha of the body will be balanced. Second, there are 3 basic alignments, like Swamiji also told in the video, if you remember. There are 3 basic structural alignments: the inner thighs, navel, and the chest. 3 basic alignments होती हैं थाइज की, इनर थाइज, नेवल और चेस्ट. तो ये की जाती है. और तीसरी जो मेन चीज की जाती है, वो आपको कंट्रोल्ड एक्सलेशन सिखाया जाता है. द थर्ड मेन थिंग दैट हैपेंस ड्यूरिंग दीज 9 weeks is you are taught controlled exhalation, which is the basis of Kumbhak therapy. So when the body is ready, now when the customized practices will be given, then it will impact your disease, then it will be impacting your problems very effectively, right? Next, 10th and the last point, extended support for 30 days after the program is over. This is the only program which offers support, active support, live support of even after the program is over, and that too for 30 days. Why this support is given? Because many times, many participants, due to various reasons, maybe some people fall sick, some are not able to attend due to any family function, whatever. So the support is given, is continued even after the 10 weeks. So need not worry about if you missed any classes, if you were not able to, if you still have any questions, you still have 30 days of extra support from our side. Next, program fee for Ashtanga Chikitsa, which most of you must be waiting for, 14,500. This is the normal fee which we charge, but like I promised in the beginning, that there's a special webinar pricing. Let's see what that pricing is.
just 6,500 for the complete 9 weeks program, including everything that I talked about, all the 10 points, the therapy customization, 18 plus 1, 19 classes, daily support in the WhatsApp group, recorded classes, availability, then written instruction, everything, all the 10 points I talked about. But this is a special pricing, so it's valid till 17th June, which is Saturday. So if you can take a decision before then you can save some money. आगे बढ़ते हैं. How to enroll? You pay the program fee, that is step 1. Step 2 is to post the payment receipt in the WhatsApp group. Then you fill the participant onboarding form, which Neha from our team will be sending you. And then step 4 is to join the class WhatsApp group, which I talked about, where you'll get daily support. And step 5 is to start attending classes to learn Ashtanga Chikitsa. Simple 5-step process. Payment methods we'll share in the chat as well as in the WhatsApp group also. Now, this is the last slide of my presentation, and I'd like to talk about our super team, which will be at your service. And we do not call ourselves a super team. Our participants call us that. They've given us this title because the kind of support that they're given and which our participants talk about also. We have Rachna Shrimal Bothra. She is the program director. She is the host of this webinar also. Shalini Bhagwat, she is the class manager. She arranges all the classes. If somebody needs to be shifted from one batch to another, she takes care of which mentor to be allotted to which batch. And then we have Ashwini Kumar. He is the IT manager. Enrollment in charge, we have Neha Upadhyay. She'll be the person you'll be talking to the most before you start your classes. And then we have a lot of mentors like Ranjana, R.D. Gupta ji, Soni, Aruna, Neena, Meera, Sushma, Manvi Shroff. Enough mentors are required so that we can support, because we understand this is an online program. So we have taken a lot of measures to support you. Like I talked about various ways in which you'll get support. So there's a proper team in place. That's the whole point here. WhatsApp admin, that's me, Anil Chauhan. I'll be answering your questions if not taken here. Like Swamiji will be here live to answer your question shortly after this. But if your question is not taken or not answered here, please do not worry. Please post the same question in the WhatsApp group. I'll be answering each and every question after this webinar is over. Then we have Himanshu Reddy. He's the technical person who uploads the videos, takes care of all app installations, the uploading, written instructions. So he's the person who will be helping you out if you face any technical issue. Then personal support team, we have Anita ji, Ankana, Kavita. So they'll be talking to you on the phone. They'll pick up some participants and they call about 30 to 40 people every day to make sure that to find out if your program is going okay or not, if you're facing any problems. So there's a proper team in place here. And with this, I come to the end of my part. Namaskar. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. So now we will be taking up the question and answer. Swamiji has already joined in. Thank you so much. Good evening, Swamiji. स्वामी जी, आपकी तरफ से थोड़ा डिस्टरबेंस है माइक का. अब ठीक. So Madhulika Saxena ma'am talks about knee pain problem, 67 years of age. See, knee pain is something which can be attributed to lot of things. बहुत सारी चीजों के कारण घुटने में दर्द होता है. मगर क्या है कि अभी आपके घुटने में दर्द हुआ, फिर थोड़ी दिन दर्द की दवाई खाएंगे, उसके बाद आखिरकार इलाज क्या? इलाज कुछ भी नहीं. घुटने बदलवा लो जी. घुटने बदलवाने पड़ेंगे ना. तो सबसे पहली चीज ये समझना पड़ेगा. मैं 2-3 तरीके से आपको समझा देता हूं. सबसे पहली चीज ये समझना पड़ेगा होता क्यों, और दूसरी चीज
कोई भी चीज आपके शरीर में अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक कौन करता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे से पहले चलते हैं, ठीक कौन करता? आपका शरीर ठीक करता है, और कोई ठीक नहीं कर सकता। रीजनरेशन आपके शरीर का स्ट्रेंथ है, आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ है, वो कोई और नहीं कर पाएगा। दवाई कभी भी रीजनरेशन नहीं करती, हमेशा डीजनरेशन करवाती है, और गलत रीजनरेशन करवाएगी, जिसको हम सिस्ट कह सकते हैं, कैंसर कह सकते हैं, इस तरीके की। तो रीजनरेटिव स्ट्रेंथ जो आपके बॉडी का है वो अगर वीक हो गया है तो जो चीज इस्तेमाल हो रही है वहां पे रीजनरेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो आप देखते हैं भाई वहां का ग्रीस खत्म हो गया, ऐसा कुछ बोलेंगे, फ्लूइड खराब हो गया, घुटने घिस गए हैं, ऐसा कुछ बोलेंगे। एक तो ये मेजर चीज है जो हम कहते हैं कि घुटने घिस गए हैं, खराब हो गए। दूसरा कारण क्या हो सकता है? अच्छा, डीजनरेशन हुआ तो रीजनरेट तो करती है ना बॉडी, मगर कर क्यों नहीं रही? आपकी बॉडी दोबारा से इसको बना क्यों नहीं रही? क्योंकि उसको रीजनरेशन का स्ट्रेंथ, शक्ति जो है वो कम हो गई। अब कौन सी दवाई खा के आप रीजनरेशन की शक्ति बढ़ाएंगे? ऐसी कोई दवाई तो होती नहीं। ज्यादा से ज्यादा दर्द कम करते हैं, दर्द कम करने से और हालत खराब हो जाती है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है दर्द की दवाई। तो प्रोस्टाग्लैंडिन आपके बॉडी में कम बनेगा तो रीजनरेशन वैसे भी नहीं होगा। तो थोड़ा आराम के लिए हम लंबे समय का नुकसान करते हैं। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहली चीज करना क्या, मतलब इसमें अगर इसको ठीक करना है तो करना क्या पड़ेगा? तो ये रीजनरेटिव स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, है ना। एक तो ये बात, ये स्ट्रेंथ आपके बॉडी के 6 स्ट्रेंथ को मिला के बनता है, जिसे देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, ऐसे नाम से जानते हैं। अच्छा, ये क्या चीज है? इसको मैं एक शब्द में अगर समझाने की कोशिश करूं तो कैसे करूंगा कि क्या चीज घुटने का रीजनरेशन करती है? एक शब्द में थ्रू ब्रेथ, अगर मैं ब्रेथ से समझाना, और भी तरीके से समझाया जा सकता है, ब्रेथ से कैसे समझाएंगे? अगर इसे कहते हैं व्यान पक्ष, और अगर आप सांस जितना ले सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम 4 गुना ज्यादा उसका रोक सकें, और 2 गुना, सपोज करो इनहेलेशन का लेंथ 5 सेकेंड है तो 4 गुना ज्यादा 20 सेकेंड कम से कम, और 2 गुना ज्यादा उससे एक्सेलेशन यानी 10 सेकेंड का अगर एक्सेलेशन कर पाए बिना प्रॉब्लम के, तो आपका व्यान स्ट्रेंथ ठीक है, तो घुटने खराब नहीं होंगे। लेकिन अभी आप ये एक्सपेरिमेंट किसी यंगस्टर पे भी अगर आप कर लें तो पता चलेगा ये शक्ति उसकी कमजोर है ही, आगे चल के घुटने खराब होने ही वाले। तो ये स्ट्रेंथ या तो बढ़ा लें प्रैक्टिस करके, ये स्ट्रेंथ या तो बढ़ा लो प्रैक्टिस करके, वही हम करवाते हैं। तो क्या होगा? तो ये पक्ष आपका जिसकी वजह से घुटने खराब हो रहे हैं उसको तो एड्रेस कर देगा। अब आगे फर्दर आपके घुटने खराब होने कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे कंप्लीट, डिपेंडिंग अपॉन योर एज ऑल्सो, और कितना कमिटेड है आप प्रैक्टिस। लेकिन ये ट्रीटमेंट तो आप कर ही नहीं रहे ना। अब दूसरा पार्ट, रीजनरेशन हमेशा मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ का एक रिजल्टेंट है, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म, आसान शब्द में क्या बोले तो आपके भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता, आपका शरीर फूड को कितना यूज कर पा रहा है, तो ये क्षमता जो है, ये मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ जो है, अगर ये ठीक होगी आपकी तो रीजनरेशन बढ़ेगा। अच्छा, ये मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ क्या होती है? भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता क्या होती है? इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब भी आपका शरीर, आप शरीर में फूड डालते हैं, भोजन डालते हैं, तो ये मेटाबॉलिक रिस्पांस देता है, यानी एंजाइम, हार्मोन, जूसेस ऐसे रिलीज करता है ना। इंसुलिन रिलीज करेगा या थायरोक्सिन बनाएगा या और एंजाइम्स बनाएगा। लेकिन जब आप इसमें फूड के अलावा कुछ भी डालते हैं तो ये खतरे में आ जाएगा। तो बचपन से आपने कितनी मेडिसिन, केमिकल डाले हैं शरीर के अंदर?
तो उससे क्या हुआ, आपके लिवर पे लोड आ गया। लिवर क्योंकि उसको निकालता है, मैक्सिमम निकालने की कोशिश करता है, किडनी पे लोड आ गया, किडनी के थ्रू निकालता है पानी में घुलो के। तो पानी, आप ह्यूमन बॉडी का जल तत्व कम होने लग गया इसकी वजह से, लिवर पे कमजोर होने लग गया। लिवर कमजोर होगा तो इंसुलिन को और इस्तेमाल नहीं करेगा, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। ये थायरॉक्सिन नहीं बनाएगा, इसे थायराइड की प्रॉब्लम कहते हैं। और इस तरीके से इम्यूनिटी क्योंकि हाई रहेगी आपकी, आपके बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स हाई रहेगा, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रूमेटाइड आर्थराइटिस, इस तरीके की चीजें आगे चल के आएंगी। तो जब भी अनजानी खराब चीजें शरीर के अंदर डालने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा। दवाइयां हुई उसमें सबसे प्राइमरी क्या, वो दवाई, फिर फूड, भोजन, जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, ये फूड भी आपके लिए खतरा। फिर एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंट में जो चेंज किया वो भी आपके लिए फिर खतरा बन गया। तो अभी ये चीज तो ठीक नहीं कर सकते आप, एनवायरमेंट ठीक नहीं कर सकते, फूड ठीक नहीं कर सकते, दवाई जो ले लिया। और आज आपके ऊपर सरकार प्रेशर डाल देगी, नहीं कि ये ले लो वो ले लो, कानून लागू कर देगी। बहुत इमरजेंसी आ जाएगी तो क्या करेंगे, वो लेना ही पड़ेगा। अभी क्या कर सकते हैं, टॉलरेंस बिल्ड कर सकते हैं। क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, नुकसान कम हो जाए इन सब चीजों का, आप झेल पाए इन सब चीजों को। तो आप झेल पाने की क्षमता अगर बढ़ जाएगी तो भी आपके घुटने काम करना शुरू कर देंगे। वैसे नहीं बनेंगे जैसे 16 साल में थे, मगर कम से कम प्रॉब्लम कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो टॉलरेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, टॉलरेंस कैसे बढ़ा सकते हैं शरीर का, कि भाई आपने दवाई खाया, नुकसान कम हुआ आपको, बाकी को ज्यादा हुआ। जिसका टॉलरेंस कम है ज्यादा होगा नुकसान, एनवायरमेंट का नुकसान ज्यादा, फूड का नुकसान ज्यादा। आज भी तो ऐसे लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं है? ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब कुछ खराब होने के बावजूद। कल मेरे पर एक टेस्ट किया, एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर से ऊपर मेरे बॉडी के ऊपर टेस्ट हुआ, पता चला कि आपके एज के हिसाब से तो मतलब आपका जो बायोलॉजिकल एज है वो तो बहुत कम है, आपका हेल्थ फैक्टर तो जबरदस्त है, अनप्रेसिडेंटेड। ये कुंभक का मैजिक है। मुझे वो सारी बीमारी थी जो आपको शायद है और नहीं भी है, कुंभक की वजह से आज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो। आप लोग समझदार हैं आप लोग, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, समझदारी का इस्तेमाल करें। जो एजुकेशन है उसका उससे कोई फायदा हुआ नहीं अभी तक। तो क्या कर सकते हैं, 10 केजी का वेट उठाइए। अगर आपकी क्षमता 10 केजी की है, फिर 15 केजी का उठाइए, तो 10 केजी आप आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। 15 केजी टॉलरेट करने के लिए किया क्या आपने, क्या चीज ज्यादा की अपने बॉडी में? तो आप देखेंगे 10 केजी का वेट आप सांस रोक के उठाते हैं। 15 केजी के लिए सांस रोकने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। एक तरीके का। दूसरा तरीके का एक्सपेरिमेंट, खड़े हो जाइए, सामने वाले किसी को बोलिए आपको धक्का देके गिराने के लिए। आपका टॉलरेंस कम होगा तो आप जल्दी गिर जाएंगे, ज्यादा होगा तो अड़े रहेंगे। अड़ेंगे कैसे, सांस रोक के। किसी को बोलिए आपको मुक्का मारने के लिए, बहुत जोर से मुक्का मारें। आप अपने को बचाएंगे कैसे, सांस रोक के बॉडी को टाइट कर लेंगे। तो टॉलरेंस, जिसकी सांस रोकने की क्षमता ज्यादा होगा, ज्यादा टॉलरेंस हो गया उसका, अब उसको नुकसान कम होगा। जब आप चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, चेयर से उठते हैं, क्या करते हैं, अंदर क्या करते हैं, सांस रोकते हैं कि नहीं रोकते? तो आपकी सांस रोकने की क्षमता बढ़ेगी तो आपके बॉडी का डायनामिक स्ट्रेंथ, यानी काम करने की क्षमता शरीर से, वो बढ़ जाएगा। और आप देखेंगे कि आपके घुटने में स्ट्रेंथ आएगी। पहले तो स्ट्रेंथ आएगी, उसके बाद उसका डायनेमिक स्ट्रेंथ यानी चलने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे ये 2 तरीके बता दिए आपको। और भी कई तरीके से हम घुटने की प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है वात दोष, कमर के नीचे का हिस्सा जो है ना, वो वात प्रकृति का होता है, वो चलायमान होता है। और वात दोष जो है ना, वो आपकी हड्डियों से रिलेटेड होता है।
हड्डियां कमजोर हो रही, क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, बॉडी कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इस्तेमाल नहीं कर पाती, हड्डियां वापस बन नहीं पा रही हैं। तो वात दोष, वात तो वायु को कहते हैं, वायु का मतलब होता है मूवमेंट की क्षमता, उसी को वायु कहते हैं। इसको अगर कंट्रोल करना है, आप अपनी बॉडी में सांस रोक के ही करते हैं। तो वात को रोकने की सबसे पावरफुल विधि क्या है? कुंभक। कुंभक आयुर्वेद का वो पार्ट है जो खो गया। कुंभक आयुर्वेद का सबसे पावरफुल पार्ट, मगर वो खो गया, उसी को हम रिवाइव कर रहे हैं। आपकी जिसे कहते हैं कमांडिंग पावर, आपका कंट्रोल पावर जो है वही कुंभक है। उसको अगर ठीक करेंगे तो आपके घुटने को रिप्लेस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is from Roshni ma'am. Groin pain radiating to leg. All of a sudden, I'm unable to get up from bed. Don't know the reason. दो चीजें इसमें आपको समझने की जरूरत है। वन, अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। आपका अलाइनमेंट जो है ना, एक नर्व देखता है जिसे हम साइटिका या सियाटिका नर्व कहते हैं। नस है, ये सिर के पीछे के यानी सर्वाइकल रीजन से निकलता है और पांव के पीछे से होता है, एड़ी तक जाता है। अभी अगर सच में ह्यूमन बॉडी को एनालाइज किया जाए, उसकी स्ट्रेंथ इतनी कम है कि इसका अलाइनमेंट ही ठीक नहीं रहता। 3 तरीके के अलाइनमेंट चाहिए आपको अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए। नाभि, नाभि यानी नेवल, नेवल सही जगह पे होना चाहिए। कौड़ी यानी चेस्ट का अलाइनमेंट, बीच में एक हड्डी निकली हुई है छाती के बीच में, नीचे की तरफ में, वो कौड़ी है, उसका अलाइनमेंट होना चाहिए। और तीसरी, नले का अलाइनमेंट होना चाहिए, यानी जांघों के अंदर का हिस्सा, जहां पहलवान ठोकते हैं ना, पहलवान जांघ ठोकते हैं, वो नले हैं। तो नाभि से मेटाबॉलिक जो बैलेंस बनता है, अगर आपकी नाभि सही जगह पे रहेगी तो आपको मेटाबॉलिक डिजीज नहीं होगा, जो कि आज के टाइम पे एपिडेमिक बन चुका है। डायबिटीज, थायराइड, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सब कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक डिजीज। पहले कहते थे ना, हर बीमारी पेट से जुड़ी हुई है ना, पेट से निकलती है हर बीमारी। तो वो नाभि का अलाइनमेंट। दूसरा, कार्डियोवैस्कुलर हो गया या फिर लंग। कार्डियोथोरैसिक जो स्ट्रेंथ है, वो जो आता है कौड़ी से आता है। तो हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। तो ये अलाइनमेंट तो किसी का होता ही नहीं, बहुत कम देखा गया। और तीसरा जो है आपका फिजिकल स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट जो बॉडी का होता है, वो नले के थ्रू होता है। तो नले जो है वो मेजरली देखेंगे कि बॉडी का अलाइनमेंट यानी नसों का अलाइनमेंट, अगर आपको सियाटिका का अलाइनमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप अपनी गाड़ी को, 4 पहिया गाड़ी, कार, ऐसी गाड़ी को कोई उबड़ खाबड़ जगह में ले जाते हैं तो उसका व्हील खराब, अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तो उसका व्हील अलाइनमेंट कराते हो कि नहीं? आप शरीर को उल जुलूल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मगर अपनी बॉडी का अलाइनमेंट करते ही नहीं है। क्या कमाल की बात है। दवाई से हो जाएगा क्या आपकी बॉडी का अलाइनमेंट? कौन सी दवाई से होता बताइए जरा। तो हमारे प्रोग्राम में 3 चीजें हैं, मर्मन्यास, अंगन्यास, मर्म विन्यास और कुंभक थेरेपी। मर्म विन्यास जो है ना, वो पूरा अलाइनमेंट, पूरी बॉडी का अलाइनमेंट करने का तरीका है। एक बार आपने सीख लिया तो आप करते जाइए, जब मर्जी करो अलाइनमेंट। जब बिगड़ गया आपको पता चल जाएगा, अलाइनमेंट कर लो। तो एक पक्ष इसका आ गया अलाइनमेंट। दूसरा पक्ष आ गया, बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है तो शरीर उसको ठीक भी करता। आपको मालूम है, आप अंगड़ाई लेते हो या लेना बंद कर दिया अंगड़ाई, बॉडी अपने आप ही अंगड़ाई लेता। मगर नेचुरल स्पेस में रहें तो अंगड़ाई लेगा, अननेचुरल स्पेस में रहें तो ज्यादा अंगड़ाई लेगा या फिर बंद कर देगा। तो जब अंगड़ाई लेते हैं ना, तो बैलेंस करने की कोशिश ही करता है। और मालूम है आपको, अंगड़ाई लेते हैं तो उस समय सांस रुकती है, रोकते हैं, फिर खींचते हैं बॉडी को, हाँ या ना, टाइट करते हैं बॉडी को, हाँ या ना, एक्सपीरियंस में है कि नहीं है ना। मगर आजकल हम एक्सपीरियंस की बात नहीं करते,
आजकल हम ऐसी बात करते हैं जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सुपरस्टिशियस हो गए हम, और उसको साइंस का नाम दिया हमने। मॉडर्न सुपरस्टिशन को हमने साइंस का नाम दिया। कितने लोगों ने प्रोटीन देखा है यहाँ पे? सबने तो कैमरा बंद कर रखा, क्या बात करें आपसे। कितने लोगों ने प्रोटीन देखा है? प्रोटीन देखा किसी ने? नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। कार्बोहाइड्रेट देखा किसी ने? किसी ने भी नहीं देखा। विटामिन देखा किसी ने? किसी ने भी नहीं देखा। अच्छा, HB1AC का किसको एक्सपीरियंस है? थायरोक्सिन एक्सपीरियंस किसको है? हाँ, RH फैक्टर। जिस चीज का आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसी टर्म्स में बात करते हो ना। जिसका एक्सपीरियंस है उसके टर्म्स में बात ही नहीं करते हो। मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, इस टर्म्स में बात ही नहीं करते आप। वो आपका एक्सपीरियंस है, मगर एक्सपीरियंस के अलावा आप ऐसे टर्म्स में बात करते हैं जिसको आप जानते नहीं। किसी ने किसी पे रिसर्च किया, अनबायस्ड रिसर्च किया, 100 साल में कितने लोगों की डायबिटीज ठीक हो गई है दवाई खा के? ब्लड प्रेशर कितने लोगों का ठीक हो, और डायबिटीज बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है ना। थायराइड बढ़ रहा है ना। 2 जनरेशन पहले कोई थायराइड नहीं था। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, ADHD बढ़ रहा है, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। कमाल की बात है, इतना ज्ञानी हो गए हम। दुनिया में हमने हर चीज में प्रोग्रेस किया, मगर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे हम गड्ढे में गिर गए? प्रोग्रेस तो छोड़िए, डिग्रेस कर दिया हमने, वो है हेल्थ। कोई भी बीमारी तो कम नहीं हुई, बढ़ रही है ना। तो एक ही एरिया है जहां पे हमने कोई डेवलपमेंट नहीं, ग्रो नहीं किया, डी ग्रो कर गए। आज नहीं खोलेंगे आंखें तो कब खोलेंगे? आप इन टर्म्स में बात करते हैं, आपको तो मालूम ही नहीं है। अगर ये सच होते, किसी ने रिसर्च करके कुछ अच्छा किया होता तो कम हो रही तो नहीं बीमारी। अब देखो, आप जाते हो, बोलते हो घुटने खराब है, घुटने बदलवा लो, हार्ट खराब है, हार्ट बदलवा लो, लिवर खराब है, लिवर ट्रांसप्लांट कर लो, किडनी खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट कर लो। ठीक तो कुछ कर ही नहीं सकते, और ठोक के कहते हैं कि हम तो बीमारी ठीक नहीं करते। फिर भी आप लाइन लगा के जाते हो, सारा अपना मेहनत का पैसा वहां पे खर्च करते हो, ताकि अमेरिका चौधरी बन के आपको रूल करे। मतलब इतना बुरा हाल तो मैंने शायद दुनिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा ना। आप उसके पास क्यों जाएंगे जो कहेंगे कि हम ठीक नहीं करते, मगर आप वहीं जाते हैं, लाइन लगा के जाते हैं, पूरा टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं। ऐसी हालत ह्यूमन माइंड की तो इतनी खराब तो कभी शायद लाखों सालों की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुई। तो एक तो अलाइनमेंट, जैसे मैंने बताया, वो करने की जरूरत है। दूसरा जो है, नर्व का रीजनरेशन करने की जरूरत है। क्या हो सकता है? हाँ, क्या आपका जेनेटिक्स चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। अभी कुछ समय पहले वेस्टर्न साइंस कहता था कि नहीं हो सकता, फिर कहने लगे न्यूरोप्लास्टिसिटी हो सकता है। कुंभक एपीजेनेटिक ट्रिगर है, 99% आपका जेनेटिक्स बदल सकता है, उसको बदलने का ट्रिगर क्या है? कुंभक है। तो कुंभक अगर आप करेंगे तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इफ यू हैव डन कुंभक, अगर आपने किया है तो हर ऑर्गन में आपके ना स्टेम सेल्स होते हैं, अगर वो एक्टिवेट हो जाए ना तो उसको रीजनरेट कर देंगे। तो एक्टिवेशन का तरीका कुंभक, टाइम अलग अलग लगेगा हर एक इंसान को। हमारे पास बहुत केसेस है, ड्रॉप फुट, माइसीना ग्रेविस, लॉक जॉ, वॉइस का इशू, न्यूरोपैथी, लकवा, मारा हुआ इंसान 95% सेंसेशन वापस आ गया उसका, पैरालिसिस का बंदा।
तो हमारे पास बहुत केस है जहां पे कि न्यूरो रीजनरेशन, दोबारा से उसको रीजनरेट करने का हमने कुंभक के थ्रू बहुत सक्सेसफुल करके दिखाया। और आपका भी न्यूरो रीजनरेशन अगर होगा ना, तो आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम और सिम्टम, खास करके आप ना सिम्टम में बात किया कीजिए कि आपको तकलीफ क्या हो रही है। अगर आप उस टर्म्स में बात करेंगे ना, तो आप देखेंगे एक सोल्यूशन है। मगर ऐसे टर्म्स में बात करेंगे जिसका शायद नाम बोलने में भी ग्रीको रोमन शब्द है, आपको मालूम नहीं, उससे कोई इलाज नहीं होता। ठीक है ना, नाम इतना बड़ा बोल देंगे, आप देख के ही बोल दोगे अच्छा ये कुछ बड़ा ज्ञानी चीज है। ऐसे नाम बोलने से ज्ञानी, आप भी पप्पू चप्पू टप्पू कुछ रख दो ऐसे नाम उल्टा सीधा, उसे ज्ञानी हो जाएंगे क्या? उसे ठीक कर देंगे? तो नाम बोलने से, नाम रख देने से कोई चीज ठीक नहीं होती। आपका शरीर उसको ठीक कर सकता है, उसको सही ट्रिगर दिया जाए, उसको सही शक्ति दी जाए, उसको स्ट्रेंथ दिया जाए, तो वो रिकवर कर ही लेगा। लाखों सालों से कर रहा है, आज से नहीं कर रहा। हमें प्रॉब्लम तो पिछले 100 सालों में आ रही है ना, पहले तो प्रॉब्लम नहीं थी इतनी। तो क्या हमने खो दिया? आपका शरीर को क्रिमिनल नहीं बनाना है आपको। अभी क्या करते हो? क्रिमिनल मानते हो ना बॉडी को। प्रूव करके दूं मैं आपको, आप क्रिमिनल मानते हो अपने बॉडी को। क्योंकि ये शरीर जब वायरस को मारने के लिए फीवर करता है, कोरोना हुआ होगा ना कई लोगों ने, तो वायरल तो हुआ ही होगा। तो वायरस को ठीक करने के लिए फीवर करता ना, 5 डिग्री अगर बढ़ाएगा फीवर, कोई भी वायरस मर जाएगा। मगर आप नहीं बढ़ने देंगे ना, पैरासिटामोल खा लेंगे, डोलो क्रोसिन ऐसा खा लेंगे, तो ये काम करना चाहेगा? नहीं करने देंगे। उल्टी करेगा, उल्टी बंद कर दोगे। 10 करेगा, 10 बंद कर दोगे। दर्द करवाएगा, बोलेगा यहां पे ठीक करना, आप दर्द बंद कर दोगे। तो हमने तो बॉडी को क्रिमिनल बना दिया। अब ये बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा, इसको कर नहीं दे रहा। आपको टॉर्चर किया जाए तो एक टाइम के बाद में आप गिव अप कर देते हो ना, कि नहीं करेंगे जी, अब नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लो। आपका शरीर भी यही कर लेगा। फिर क्या करोगे? दवाई भी काम नहीं करती एक टाइम बाद, तो शट डाउन करने लग जाएगा। तो क्रिमिनल नहीं बनाना शरीर को, इसको हेल्प करो और ये आपको आपकी जीवन में मैजिक क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sadhana Bansal ma'am talks about various food allergy causing swelling all over body, asthma and sinus. देखिए, पहली बात तो मैं एक और थोड़ा टेक्निकल होकर आपको समझा देता हूं, हाँ, उसको आसान शब्द में समझाऊं। एलर्जी का मतलब क्या होता है? एलर्जी का मतलब होता है आप किसी चीज को ले नहीं पा रहे, ग्रहण नहीं कर पा रहे, यही होता है ना एलर्जी का। जितना भी आप ज्यादा हाइजीनिक के नाम पे जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे हाइजीन के नाम पे, उतना आप एक्सेप्टेंस कम कर देंगे अपनी बॉडी की। लाइफ में एक चीज सबसे बुरी है, वो है लाइफ को एक्सेप्ट करना आपने कम कर दिया। तो अगर एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ की कम हो जाएगी तो एलर्जी तो होगी। यही चीज हम सोशियो साइको सिस्टम में भी देख रहे हैं। एटिकेट्स के नाम पे, व्यवहार के नाम पे एलर्जी क्रिएट कर दिया हमने, नफरत क्रिएट कर दिया हमने। तो ये तो होना ही है। इसका दूसरा पक्ष है, जब भी हम एनवायरनमेंट को जीने लायक नहीं छोड़ते, जैसे एक पोल्यूटेड जगह है, एक डीजल की गाड़ी, ट्रक जो है धुआं दे रहा है, आप वहां से गुजरेंगे तो आप अपने आप नाक बंद कर लेंगे, सांस नहीं लेंगे। तो क्योंकि वो उस हवा को, गंदगी को आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मगर हमने तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट पोल्यूट कर दिया ना। अगर एनवायरनमेंट पोल्यूट कर दिया तो क्या आपका बॉडी उस हवा को लेना चाहेगा? अब भोजन हमने बदल दिया अपना, जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड। तो अगर आपके अंदर टॉलरेंस होगा तब तो वो झेल जाएगा बॉडी, नहीं होगा तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एलर्जी तो किस टर्म्स में आसानी से आप इसको समझ सकते हैं? आपके शरीर में एक पक्ष होता है जिसे कहते हैं उदान,
इसको कोरिलेट कैसे किया जा सकता है ब्रेथ के साथ में? इनहेलेशन जो है ना, इनहेलेशन की स्ट्रेंथ, इसको उदाहरण के साथ कोरिलेट कर सकता हूं। पूरा पूरा नहीं, मगर कुछ हद तक कोरिलेट कर सकता हूं। ऐसे ही जब आप सुबह जगते हैं तो आपकी अवेयरनेस जो बेसिकली है ना, वो भी उदाहरण पक्ष ही है। या उदाहरण पक्ष एक और चीज है आपके बॉडी के अंदर कि आप जब फूड खाते हैं तो कितना आपका बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेता है, सोक कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी, ये भी उदाहरण पक्ष है। इसमें से अप्रोच क्या, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगा इसको ठीक करने का? बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगा कि जिस तरीके से ये पूरा साइकिल होता है, आप एक फूड को इस्तेमाल, किसी भी चीज को, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो, आपका बॉडी किस तरीके से उसको इस्तेमाल करता है, कन्वर्ट करता है बाकी चीजों में, वेस्ट को बाहर निकालता है और वापस एक डिमांड क्रिएट करता है। तो ये पूरा साइकिल अगर आप एम्पावर कर दें तो आपका एलर्जी चला जाएगा। ऐसे बहुत लोगों के एग्जाम्पल है, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, जहां पे कि कितनी ही दवाई खाके, चाहे वो एंटी एलर्जी किसी भी तरीके का, एविल या सिट्रिजिन या इस तरीके की चीजें एंटी एलर्जी खाके एक एलर्जी को ठीक करने की कोशिश की तो नहीं हुआ, और वो कुंभक के जरिए बड़े आसानी से हो गया। क्योंकि कुंभक के जरिए आपका शरीर, एक तो टॉलरेंस बढ़ गया उसकी तरफ में, जैसे मैंने पहले बताया टॉलरेंस बढ़ गया, दूसरा आपके इस्तेमाल करने की क्षमता अगर हो जाएगी तो वही एलर्गन नहीं रहेगा, वही फूड बन जाएगा आपके लिए। या आपका शरीर अगर डिटॉक्स को बाहर निकाल सके ठीक से, उसका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये कि एलर्जी किसी दवाई से ठीक नहीं कर सकते। थोड़ा मैनेज कर सकते हो, या बहुत ज्यादा तकलीफ है उस समय एंटी एलर्जिक लेके उस समय थोड़ा सा आराम मिल जाएगा आपको, बट वो टेंडेंसी है एक आपके बॉडी की, वो टेंडेंसी ठीक करने के लिए आपको कुछ ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा जो टेंडेंसी क्रिएट करता है। और कुंभक आपकी टेंडेंसी क्रिएट कर, कुंभक आप दिन रात इस्तेमाल करते हो, कुंभक ही कर्म का मूल तत्व है। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग स्टेयरकेसेस, डूइंग हाउस होल्ड चोर, कुछ भी आप एक्शन आप कुंभक के जरिए ही करते हैं। तो कहने का मतलब कि जैसे एक पहले बताया उदाहरण, दूसरा बताया टॉलरेंस, ठीक है, फिर कुंभक वो चीज है जो कि इन दोनों को एम्पावर कर देगा और कुछ समय में आपकी ये एलर्जी चली जाएगी। एलर्जी में सूजन आता है, सूजन एक्चुअली आपका बॉडी क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि वो वहां पे कुछ एक्टिविटी चल रही है जिससे उसको या तो यूटिलाइज करके बाहर निकालने की कोशिश करेगा या उसको खत्म करने की। ये आपके बॉडी रिस्क समझता है, तो ये पूरा इम्यून रिस्पॉन्स है आपके बॉडी का। वो गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो होती है उससे। तो आप रूट जो जड़ है उसको अगर आप ठीक कर देंगे तो बॉडी को ये इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, Neeta ma'am talks about SLE, lupus, purpura, autoimmune disease, hypothyroid, cervical, mid-back, lower back, ankle pain, knee pain, plantar fasciitis, depression, migraine. ये हालत ना बहुत लोगों की, इतना इलाज कराया होगा, सोचिए क्या इन्होंने इलाज नहीं कराया होगा, मगर एक के बाद एक बीमारी बढ़ती है। तो पहली बात तो ये अलग अलग बीमारी नहीं है, ये आप अलग अलग बीमारियां सोच रहे हो। आप सोच रहे हो मेरा एक लिवर है, हार्ट है, मगर ये लिवर हार्ट के बगैर काम नहीं करता, मालूम है आपको। फिर मेरा किडनी है, तो किडनी लिवर के बगैर काम नहीं करता। लंग्स है, लंग्स किडनी के बगैर काम नहीं करेंगे। दिखने में, समझ में आने में ये अलग अलग दिखाई देते हैं, मगर फंक्शनैलिटी देखें तो वो जुड़े हुए हैं किसी ना किसी स्ट्रेंथ और फंक्शन के थ्रू।
तो अगर आप किडनी को अलग देखेंगे, लिवर को अलग देखेंगे, हार्ट को अलग देखेंगे, तो हर एक बीमारी को आप अलग अलग बीमारी का नाम दे देंगे। ये एक फसाड है, ये एक मृग तृष्णा है, ये जो पाश्चात्य जगत की वेस्टर्न साइकोलॉजी है। वो जिस जगह को देखेंगे कहते हमने डिस्कवर किया। इंडिया आएंगे, क्या इंडिया को हमने डिस्कवर किया? पहले लोग, उनसे 1000 साल पहले से लोग रह रहे हैं, सिविलाइजेशन है, वो नहीं है। जब वो आएंगे तो कहेंगे हमने डिस्कवर किया। तो अलग अलग चीज को देखते हैं, नाम रख देते हैं, फिर कहो उनको ठीक कर दो जी इनको, तो ठीक तो नहीं करते हम। फिर कहानी तो वही है ना जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक तो होता नहीं। अब आपको थोड़ी सी आपके शरीर की तरफ से वकालत कर दूं, आपके शरीर में है वो, तो थोड़ी शरीर की तरफ से वकालत मैं कर रहा हूं आपको, एक बॉडी की एक स्टोरी सुना रहा हूं, इसको समझ जाइए, आपका बॉडी ठीक हो जाएगा इसको, इस पे काम करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि बॉडी का 2 रिस्पॉन्स होता है, इम्यून रिस्पॉन्स और मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स। फूड डालेंगे तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होगा, खतरा होगा, कोई गलत चीज जाएगी तो इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो आपकी मेडिसिन तो फूड नहीं है, और फूड को भी हमने बदल दिया, तो हर एक चीज आपके बॉडी के लिए खतरा है। तो जब आप उसे खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स की जगह इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है। इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा यानी इसको खतरा बढ़ेगा, तो आपका शरीर जो है मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स यानी थायराइड को के फंक्शन को कम करेगा, हमेशा मेटाबॉलिज्म को कम करेगा। जैसे कि अगर हमला हो जाए एक देश के ऊपर तो प्रधानमंत्री पीछे जाता है, राष्ट्रपति ऊपर आ जाता है। आपके घर में भी अगर कुछ खतरा आ गया तो किचन बंद हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बंद हो जाता है, कम हो जाता है। खतरे से निपटने के लिए हम सारी तैयारी करते हैं, तो आपके बॉडी में भी वही होता है। तो अगर आप बार बार कुछ ऐसा आपके शरीर में डाल रहे हैं, केवल शरीर में डालने की ही बात नहीं है, एंजाइटी, अगर आपको किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कुछ देख नहीं पा रहे, जैसे आपको प्रोटीन कुछ बता दिया, प्रोटीन खाना चाहिए, अब आपने मान लिया किसी की बात को, आंख बंद करके माना ना, तो आपने प्रोटीन देखा है, उस बंदे ने देखा ही नहीं देखा पता नहीं, उसने बायस रिसर्च किया है, वो कुछ भी निष्कर्ष पे आ सकता। तो अनजानी चीज के लिए ना हमेशा हमारी बॉडी में खतरा आ जाता है। लाइफस्टाइल, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। कंपनी में एक बंदा काम कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं ये काम जो कर रहा हूं उससे कितना फायदा हो रहा है, मुझे कितना मिल रहा है, कुछ पता ही नहीं है उसको। जितना बड़ा सोशल कॉम्प्लेक्स हम डेवलप करते जाते हैं उतने अनजान हो जाते हैं चीजों से, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो खतरा बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, फियर बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो वो भी खतरा है हमारे लिए, केवल फूड ही नहीं, एनवायरमेंट ही खतरा है हमारे लिए। तो दवाइयां ही खतरा नहीं है, हमारी सोच ही खतरा, हमको जो सिखाया जा रहा है वही खतरा है हमारे लिए। तो आप तो हमेशा एक तरीके से फाइट मोड में आपकी बॉडी आ जाती है, लड़ने के मोड में। लड़ने के मोड में अगर बॉडी रहे तो मेटाबॉलिज्म वगैरह क्या करेगी, वो सब डाउन कर देगी। इसे कहते हैं, इसको गूगल करके देखिए, इसको कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी और एड्रिनल फटीग। तो जब आपके शरीर में खतरे से जूझ रहा है पूरी तरीके से हर मोमेंट, उस समय मेटाबॉलिज्म डाउन होगा ही होगा आपके शरीर का। लिवर काम भोजन को इस्तेमाल करने की बजाय खतरे को बाहर निकालने के लिए करेगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी आप मेडिसिन डालते हैं अपने शरीर में 500 मिलीग्राम की, तो 498 मिलीग्राम 498 मिलीग्राम बॉडी निकालता है बाहर। 2 ओवरलोड मिलीग्राम किया जाता है जो आपके बॉडी में जाता है। इसे कहते हैं डोज टाइट्रेशन, यानी ओवरलोड करके आप बॉडी में कुछ घुसा देते हो। अच्छा, उससे भी काम नहीं चलता तो इंजेक्शन डाल देते हो, आईवी इंजेक्शन सीधा ठोक दिया। तो ऐसे तरीके निकाले हैं हमने बॉडी को टॉर्चर करने के। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका बॉडी खतरे से निपटने के लिए जब काम करेगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। लिवर आपका वो पैरासिटामोल या फिर दर्द की दवाई निकालने के लिए काम कर रहा है, तो क्या करेगा, पाचन का काम, मेटाबॉलिज्म का काम कम करेगा।
तो आपका इंसुलिन जो है ना, जो इंसुलिन है वो लिवर में गिरता है, तो क्या करेगा, आप थक जाएंगे तो क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं अभी थोड़ा हौले हौले इजी इजी काम करते हैं, ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो इंसुलिन को लेता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता, इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो थायरॉक्सिन बनाता नहीं है ठीक से, वो थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये किसने किया, आपके बॉडी ने नहीं किया, ये हमने किया, ये हमने किया। तो क्या हुआ, हमने इम्यून एक्टिविटी बढ़ती है। अब आपके बॉडी को तो जीना है ना, आपको जीना नहीं जीना क्वेश्चन मार्क, आपके बॉडी को जीना है 100% गारंटी। आपको जीना नहीं जीना वो तो क्वेश्चन किया जा सकता, आपके बॉडी पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो वो मेटाबॉलिक रिस्पांस बढ़ाने की कोशिश करेगा, इम्यून रिस्पांस काम कम करने की कोशिश करेगा, फिर आप एक गोली डाल दोगे, फिर आप कुछ खतरा ले लोगे। ये बार बार ऊपर नीचे जो इम्यून सिस्टम आपका जा रहा है, थोड़े टाइम के बाद में योर बॉडी विल गिव अप। इसे कहते हैं आप कंट्रोल से बाहर हो जाएगा आपका इम्यून सिस्टम, इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसको कितने ही नाम से बुला लीजिए आप, ल्यूपस, ये वो, रिमेटाइड, कुछ भी बोल लीजिए, हाशिमोतो, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ कैंसर। ये एक ही प्रॉब्लम से आपको इतनी प्रॉब्लम आई है। किसी की बॉडी झेल जाती है तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, दो एक प्रॉब्लम आती है। किसी की बॉडी बहुत अगर टॉलरेंस है तो नहीं आता प्रॉब्लम, अगर बहुत कम टॉलरेंस है तो मल्टीपल इश्यूज। इलाज क्या है, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए वहां तो इलाज नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो इलाज करते ही नहीं है, हम तो मजे ले रहे हैं बस आपके बॉडी के साथ, मैनेज कर देंगे जी, लेवल को थोड़ा इधर उधर कर देंगे। देखिए हमारे, हम तो जादू करते हैं बस, इलाज नहीं करते। तो आपके बॉडी को एक चांस दो ना, क्या ये इतना भी प्रॉब्लम हो गया कि आप 6 महीने का चांस दो ना, इसको एम्पावर करो। अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी बॉडी की वजह से आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं लाइफ को, और किसी की वजह से नहीं, ना डॉक्टर की वजह से, ना किसी और सरकार की वजह से, ना WHO की वजह से, आप इस बॉडी की वजह से लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके स्ट्रेंथ फैक्टर्स बढ़ाइए, इसका टॉलरेंस बढ़ाइए, इसका रिस्पॉन्स को रेगुलेट करें, इसकी स्ट्रेंथ शक्तियां, जो 6 शक्तियां, 6 बल हैं वो बढ़े। सप्त धातु को आप ठीक कीजिए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुओं का प्रोडक्शन आप सही कीजिए। और कुंभक करने के बाद में आपके हार्मोन लेवल्स ठीक हो जाते हैं आपका। हमने तो बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखा, डिपेंडिंग अपॉन द कमिटमेंट एंड द मोमेंटम ऑफ डिजीज, हर एक प्रॉब्लम रिवर्स होता, हर एक प्रॉब्लम रिवर्स होता। तो 6 महीने, साल भर थोड़ा टाइम दे दीजिए ना शरीर को, थोड़ा मौका दे दीजिए एक बार जीने का, दोबारा से एक अच्छी लाइफ के लिए। धीरे धीरे करके इसके स्ट्रेंथ फैक्टर्स को बढ़ाएं, किसी भी चीज को ही रिवर्स कर देगा, आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी। दवाइयां जितनी जल्दी आपकी दवाइयां छूटेंगी उतने जल्दी ये रिकवरी करेगा। दवाई आपको रिकवर नहीं करने देगी कभी भी, दवाई रोकती है आपके बॉडी को रिकवर करने से। तो समझिए, कुछ भी जाए नेचुरल की तरफ में जाए, अगर सपोर्ट ही लेना है तो जितना हो सके नेचुरल सपोर्ट लें, मगर अंदर से तो आपको काम करना ही पड़ेगा, और कोई चारा तो है नहीं। अंदर से आपके बॉडी को जो उसका स्ट्रेंथ फैक्टर है वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा, ऑर्गन स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, ऑर्गन फंक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ये तो आप कुंभक के थ्रू ही कर पाएंगे। Saksham sir talks about suffering from tennis elbow pain in my both hands since 1.5 years. बहुत आसानी से टेनिस एल्बो ठीक हो जाता है। मैं एक और एक्सपेरिमेंट करने बोलूंगा आपको, आप अपने आप करके देखो। सभी कर सकते हैं। ये टेनिस एल्बो होता क्यों है? जिनका कफ वात प्रकृति होती है ना, यानी बॉडी में जिनका ऑलरेडी श्लेष्म ज्यादा है,
यानी उनमें फ्लो कम होता है बॉडी के अंदर। तो क्या होगा कि उनका स्टिफनेस आता है। ऐसे लोगों की बॉडी में ना अपर बॉडी पार्ट में स्टिफनेस आएगा, जैसे सर्वाइकल का इशू आएगा, शोल्डर का इशू आएगा, टेनिस एल्बो का इशू आएगा, या फिंगर्स के जॉइंट का इशू आएगा इस तरीके का, या फिर लंग्स का इशू आता है उनमें ज्यादा। तो एक और चीज होती है, ऐसे लोगों में ना बॉडी की हीट पैदा करने की एबिलिटी जो है तो कम होती है। अभी कुंभक आप अगर 10 से 15 मिनट करें अपने आप ही, सांस को रोके अपने कैपेसिटी से और करते जाएं इस तरीके से, तो आप देखेंगे 10 से 15 मिनट में आपको पसीना आने लगा, बॉडी गर्म हो जाती है। ठीक है ना। और ये करने से पहले जरा खड़े होकर दोनों पांव को जोड़ के अपने सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करें, या बैठ के लगाने की कोशिश करें। देखें कहां तक पहुंचते हैं, कितनी दूर पहुंचते हैं, और कुंभक करें 10-15 मिनट इस तरीके से, और उसके बाद देखें कहां तक पहुंचते हैं। आप देखेंगे अचानक क्लोज हो गए, ज्यादा पहुंचने लगे। तो मैंने ये काम बहुत लोगों पे किया, अपने ऊपर तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया इसको लेके। हठ योगा एक ऐसी चीज थी जो बचपन से मैं करता था, और कुंभक करने के बाद में आज के टाइम पे अगर देखा जाए, मेरे एक टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। चिकनगुनिया होने के कारण तो बिल्कुल ही जॉइंट का हालत खराब हो गई थी, मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, और वापस से मेरी फ्लेक्सिबिलिटी आज के टाइम पे, जो मैं शायद 16 साल में मेरी फ्लेक्सिबिलिटी थी, या 20 साल 22 साल ऐसी एज में, वही आज भी है। इसके बावजूद कि मेरे जॉइंट्स ऑलमोस्ट सारे डैमेज हैं, टूटे हुए हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन था और हर चीज तोड़वाया हुआ है, कुंभक की वजह से, सिर्फ कुंभक की वजह से। कोई और चीज नहीं कर सकती आप। तो अगर आपके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी जैसे बढ़ जाती है ना, ये टेनिस एल्बो अपने आप ही अनलॉक हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे आपको प्रॉब्लम ही नहीं। फ्रोजन शोल्डर भी ऐसे ही निकल जाता है। सर्वाइकल, मुझे किसी ने बोल दिया आज से 30 साल पहले की बात है कि आपको सर्वाइकल, एक फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा आपको सर्वाइकल। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद दोबारा गया ही नहीं मैं उसके पास। मैंने कहा इसको कुछ मालूम ही नहीं है। एक्चुअली मुझे कभी प्रॉब्लम ही नहीं, आज तक प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का मतलब ये कि क्या ये ठीक होता है, या फिर जरूरी है कि जो डायग्नोस किया वही चीज सही हो? नहीं, ऐसा सही नहीं है। हर एक बॉडी की टाइप अलग होती है, हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ लोगों में शुगर को टॉलरेट करने की क्षमता जाती है, उनको हाई शुगर लेवल कोई डैमेज नहीं करता। हाई ब्लड प्रेशर कई लोगों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता। लेकिन कुंभक करेंगे तो वह एनीवे डैमेज नहीं कर पाएगा आपको। हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनका हाई शुगर लेवल और ग्लूकोमा ठीक हो गया, न्यूरोपैथी ठीक हो गया, इन्फेक्शन बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। दवाई खा के तो नहीं होता ऐसा। ये आपका शरीर करता, आपका बॉडी करता। आपके बॉडी में क्षमता है, उसकी क्षमता बढ़ा दीजिए। तो कफवात इशू को अगर आपको हैंडल करना है सबसे पावरफुल तरीके से कैसे करेंगे? कुंभक करके करेंगे। कुंभक वात को कंट्रोल करने का, उससे पित्त को कंट्रोल करने का, उससे कफ को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका है। इससे पावरफुल तरीका कुछ हो नहीं सकता। दवाई खाएंगे तो सपोर्ट होता है, चाहे वो केमिकल दवाई खाओ उससे नुकसान होगा, जड़ी बूटी खाओ या नेचुरल दवाई खाओ वो भी सपोर्ट है। आपकी शक्तियां नहीं बढ़ाएगा कोई दवाई। भोजन भी आपके शरीर की शक्ति नहीं बढ़ाता, नहीं तो भोजन खा के मैराथन दौड़ने लग जाएंगे आप। नहीं, सो फूड को डाइजेस्ट करने में आपके शरीर की शक्ति ही लगती है। कुंभक करें, अपने शरीर की शक्तियां बढ़ाएं। डाइट के बारे में भी हम थोड़ा बहुत बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, डाइट प्लान नहीं देते आपको। हम डाइजेशन में आपको ऐसा करना चाहते हैं कुछ भी खाओ, है ना। आप अगर पत्थर भी पचा सको तो क्या फर्क पड़ेगा आपको, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। तो अगर बहुत डाइट रेगुलेट करके जी रहे हैं तो क्या जी रहे हैं आप इतने बंधन में। हाँ, आपका डाइजेशन इतना इंप्रूव करना चाहिए कि कुछ भी खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही हमारा काम है, हम वो काम कर रहे हैं। Okay. Satwan sir talks about near my eye there is a small round growth. Doctor says it's due to high cholesterol. I didn't get checked cause of fear of medicines. So when the body gets into risk, first of all, जैसे कि मैंने बताया
अब स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपके लिवर में केमिकल गया और केमिकल को आपके लिवर ने निकाला, मगर केमिकल आपके लिवर को असर करेगा ना। केमिकल को आप अपने स्किन पे रगड़ लो, जलन होगा कि नहीं होगा? फिर क्या करें? उस जलन को कम करने के लिए थोड़ा फैट लगा दें, घी लगा दें। घी लगाएंगे तो जलन कम हो जाए। तो आपका लिवर क्या करेगा जलन को कम करने के लिए? आप बताओ मुझे। फैट क्रिएट करेगा, उसे फैटी लिवर बोल देते हैं। दोबारा से क्रिमिनल बना दिया अपने लिवर को, अपने बॉडी को। क्या फैटी लिवर गलत चीज है? नहीं। क्यों फैटी लिवर हो रहा है उसको हटा दो, फैटी लिवर नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज, जब रिस्क होगा आपके बॉडी में, 2-3 चीजें और होंगी। आपका बॉडी एंटी रिस्क हार्मोन क्रिएट करेगा जिसका नाम है कॉर्टिसोल। क्या नाम है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बनाना पड़ेगा आपके बॉडी को। कैसे बनाएगा? कच्चा माल क्या है उसके लिए? कच्चा माल क्या है? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, उससे कॉर्टिसोल बनता है। तो बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा आपका बॉडी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को? तो क्या ये गलत कर रहा है? आपको रिस्क से नहीं निकालना अपने आप को। अब आप वो भी क्रिमिनल कर दिया आपने अपने बॉडी को। रिस्क तो कम किया नहीं आपने, रिस्क आपने कम नहीं किया, मगर बॉडी को क्रिमिनल बना दिया। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना कुछ गलत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं करता। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ऐसा कोई रिसर्च पेपर नहीं है जो बता रहा है कि ब्लॉकेजेस होते हैं। ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक होता ही नहीं है, पहली बात तो ये। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जहां बता रहे हैं कि ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक होता है। ब्लड क्लॉटिंग से होता है। अब आपने बाहर चोट लगती है तो ब्लड क्लॉट होता है ना, खून गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, भी वो हील होता है। अब आपने अंदर बॉडी के रिस्क बना दिया तो अंदर ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। तो वो रिस्क को कम करने के सारे आयाम, हार्मोन, एंजाइम सब निकलेंगे। अब ओवरग्रोथ क्यों हो रहा है आपके बॉडी में? कहीं पे ओवरग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसुलिन आपके लिवर में गया नहीं ना, आपके ब्लड में रह गया। तो ब्लड जहां भी थोड़ा बहुत भी काम कर रहा है, फीमेल में क्या होगा? ब्लड का काम सबसे ज्यादा कहां पे है? यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज। तो वहां पे क्या होगा? PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस, चॉकलेट सिस्ट। और क्या होगा? अनइवन ग्रोथ इन यूट्रस, यूट्रस में अनइवन ग्रोथ होगा तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ऐसे फीमेल में। या और क्या होगा कि उनका पीरियड्स में प्रॉब्लम आएगा, कंसेप्शन में प्रॉब्लम है। बॉडी में जहां भी थोड़ा बहुत भी ब्लड का फ्लो ज्यादा हुआ वहां पे ओवरग्रोथ आ जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हुआ। बहुत क्वेश्चन हैं, कोई भी आइडिया को ऐसे ही नहीं लें। वो भी उन लोगों से आइडिया आप ले रहे हैं जिन्होंने कोई ठीक ही नहीं किया बीमारी। किसी ने ठीक किया उससे फिर भी आप एक आइडिया ले सकते। जिसने ठीक ही नहीं किया कभी, उससे आप आइडिया ले रहे हैं। दिन रात आपसे उन्हीं से आइडिया ले रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या गलत चीज है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। ट्राइग्लिसराइड बिल्कुल भी गलत नहीं है। स्टैटिन खाना गलत है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खाना गलत है। तो आपको सोचना पड़ेगा। पहली बात तो आइडिया ना लगाएं ये क्यों हो रहा है। दूसरी बात, इस तरीके के सिस्ट कुंभक करने से डिसॉल्व हो जाते हैं। ऐसे हमारे पास यानी कि PCOD तक डिसॉल्व हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस ठीक हो जाते हैं। यूट्रस का हम एक फर्टिलिटी का प्रोग्राम करते हैं, गर्भाधान और अष्टांग गर्भ संस्कार। वहां पे ये रिजल्ट AMH काउंट बढ़ जाता है, स्पर्म काउंट बढ़ जाता है, हार्मोनल इश्यूज ठीक हो जाते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब के ये भी हार्मोन से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, ये ठीक हो जाते हैं। लोग जो बहुत सारी दवाइयां खा के सोते थे वो बिना दवाई खाए खूब अच्छे घोड़े बेच के सोते हैं। तो कहने का मतलब ये कि वापस से कह रहा हूं, अपने बॉडी को क्रिमिनल ना बनाएं और ये भाषा ना बोलें जहां आपका बॉडी क्रिमिनल दिखे। ऐसा होता नहीं, आपका बॉडी क्रिमिनल नहीं है। कुंभक करें
टाइम दे अपने बॉडी को, ये सब चीजें ठीक हो जाती है। एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हो अगर कोई है तो। हाँ, आरती श्रीकांतन, she is asking, will this therapy help in hair loss? हेयर लॉस, एक तो हेयर लॉस को कई तरीके से बताया जा सकता है। एक तो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस इन एवरी ह्यूमन्स लाइफ। 6 महीने से साल भर का एक हेयर फॉल पीरियड आता है, और वो पीरियड ऐसा नहीं कि एक ही बार आए लाइफ में, वो 2-3 साल बाद में ऐसे एक बार आएगा ही आएगा। कई में ज्यादा आता है, कई में कम आता है। एक तो ये, तो उसमें तो कोई डरने की जरूरत नहीं। दूसरी बात ये कि हेयर फॉल जो है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके हेयर के फॉलिकल्स में यानी जड़ में सबसे शॉर्टेस्ट लिविंग स्टेम सेल्स होते हैं, उनको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए होता है। अगर आपके बॉडी में फ्लो ठीक नहीं है, यानी न्यूट्रिशन कैरिंग कैपेसिटी ठीक नहीं है, यानी कि या तो आपको हाइपोथायराइड से सफर कर रहे हैं या इस तरीके के किसी चीज से जिससे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ रहा है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता ठीक से, तो उस समय वो गिरने शुरू हो जाते हैं। तीसरा कारण ये है कि अगर आपके बॉडी का वाटर बैलेंस ठीक नहीं है, वाटर बैलेंस, पानी को जल तत्व का बैलेंस ठीक नहीं है कर बॉडी में। ऐसे मान के चलिए ना, एक पौधा है, उसको मिट्टी में पौधा है, उसको पानी देना बंद कर दीजिए। गर्मी में वो पूरी गर्मी में देखेंगे कि मिट्टी फट जाएगी और उसके जड़ एक्सपोज हो जाएंगे और वो आराम से गिर जाएगा। ये आपके स्कैल्प के साथ में, आपकी बॉडी के साथ में भी हो रहा है, क्योंकि आपका सारा जल तत्व जो है ना, वो केमिकल्स को, खतरे को या टॉक्सिन्स को निकालने में लग रहा है, तो ये मेटाबॉलिज्म में कम इस्तेमाल हो रहा है। तो ड्राइनेस का इशू बहुत आ रहा है, खास करके थायराइड में ये बड़ा देखने को मिलता है, स्किन के इश्यूज, ड्राइनेस के इश्यूज। तो 3 चीज बता दिया, 3 चीजें आपको बता दी, और भी कई चीजें बता सकता हूं मैं, मगर क्या है कि इतना ज्ञान आप लेने के बाद भी ठीक नहीं होने वाले, ये मैं आपको साफ साफ गारंटी दे सकता हूं। कुछ काम करेंगे शरीर में तो ठीक हो जाएंगे, है ना। अगर बाल गिरते हैं तो दोबारा भी ग्रो करते हैं, क्या आपको मालूम है इस बात का? तो कहने का मतलब ये कि कुंभक करने से अगर आपके बॉडी में फ्लो ठीक नहीं हो रहा, यानी किचन का सिंक ब्लॉक हो गया, जूस पी रहे हैं, जूस पाइप में पल्प फंस गया, कैसे निकालेंगे? थोड़ा जोर लगाएंगे तो निकल जाएगा ना। थोड़ा आपके शरीर के अंदर अगर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, एक थोड़ा जोर क्रिएट करेंगे, तो फ्लो आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पहली बात तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कुंभक जो है एपिजेनेटिक ट्रिगर है, तो वो आपके स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करेगा, न्यूट्रिशन को कुंभक पहुंचाने में हेल्प करेगा, बॉडी में पानी को होल्ड, रोकने का काम करेगा। ये तीनों चीजें अगर ठीक से बैठ गई, आपकी प्रॉब्लम का मोमेंटम अगर बहुत ज्यादा है तो थोड़ा टाइम लेगा, अगर कम है तो बड़ी जल्दी आप देखेंगे ये चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बंद हो जाएगी। मगर केवल हेयर लॉस ही आपकी प्रॉब्लम नहीं है, समझिए, उसके जड़ तो कहीं और है, उसको ठीक करना शुरू करें। केवल हेयर लॉस ही नहीं, इस तरीके की बाकी जितनी प्रॉब्लम आ रही हैं वो सारी की सारी आप देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बिल्कुल चली जाएंगी, आपकी लाइफ बहुत एम्पावर हो जाएगी। सो विद दैट we'll end this question answer session. Thank you so much, Swamiji, for the wonderful session. And here we come to the end of the webinar. अगर आपके कुछ questions unanswered रहे हैं, तो please put it in the webinar group and we will answer it shortly. Thank you so much. Good night. Stay well. Stay healthy. Signing off. Rakshmi.